કે ફોર્મ્યુલાસ આપણે જોવા પડે કે કયા કયા ફોર્મ્યુલા યુઝ થયા છે, બરોબર. તો ફોર્મ્યુલાસની વાત કરીએ. ઓકે, ચલો. જો પહેલા તમને મેં વાત કરી હતી કે આ ચેપ્ટર છે 4 માર્કનું ચેપ્ટર છે, ત્યાં ચેપ્ટર વિશે એટલી બધી આપણે ચિંતા કરવાની નથી, બરોબર. પણ જે ટેક્સ્ટ બુકમાં આપેલું છે એ તો કરવું પડે, બરોબર ને. એટલે આપણે થિયરીના લેક્ચર્સ મેં તમને રેકોર્ડેડ આપી દીધા છે. એટલે ફોર્મ્યુલા પહેલા જોઈએ, ફોર્મ્યુલા પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ફોર્મ્યુલા પછી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું ન્યુમેરિકલ્સ. ઓકે, ફોર્મ્યુલામાં સૌથી પહેલો ફોર્મ્યુલા મેગ્નેટિક મોમેન્ટ. મેગ્નેટિક મોમેન્ટ એટલે N I into A, where N is number of turns, I is current, and A for area. A for area, right? Now, magnetic field on the axis of the magnet. એટલે આપણી પાસે આ મેગ્નેટ છે, મેગ્નેટનો આ નોર્થ પોલ, આ સાઉથ પોલ, અને મેગ્નેટિક લેન્થ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2L. 2L એટલે મેગ્નેટિક લેન્થ, એટલે મિડ પોઈન્ટ થી નોર્થ પોલનું લેન્થ L અને મિડ પોઈન્ટ થી સાઉથ પોલની લેન્થ L, એટલે ટોટલ લેન્થ 2L. આ 2L ને કહેવાય મેગ્નેટિક લેન્થ ઓફ ધ મેગ્નેટ. મેગ્નેટિક લેન્થ, બરોબર. Now we want to find out magnetic field at some point on the axis. तो ये पॉइंट मैग्नेट की एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस r. सो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा B इक्वल टू म्यू 0/4π2m/r3, where m is equal to magnetic moment, r is the distance of the point from which a distance of the point at which we want to find out the magnetic field from the center of the magnet, बरोबर. तो this formula B equal to म्यू 0/4π2m/r3. Now next formula, magnetic field at the equator. इक्विटोरियल लाइन, यानी ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये इक्विटोरियल लाइन, ये रहा एक पॉइंट, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, एंड इट इज ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर. सो इट्स फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू 0/4πm/r3, राइट. तो it is a magnetic field on the axis and it is a magnetic field on the equator, बरोबर. इक्वेटर मतलब a line which is perpendicular to the length of the magnet is called equator. So magnetic field on the axis is equal to double than the magnetic field at the equator, right. तो ये इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, म्यू 0/4πm/r3, और एक्सिस पे क्या है फॉर्मूला, म्यू 0/4π2m/r3. तो इट इज द डबल देन दिस फॉर्मूला, राइट. तो हम ये रिलेशन भी याद रख सकते हैं. नाउ torque on the magnet. Formula of torque on the magnet, when a magnet is placed in the magnetic field. देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है. ये मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ टू साउथ. यहाँ पे अगर मैंने एक मैग्नेट रखा है, ये मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. यहाँ पे ये फोर्स लगेगा नॉर्थ पोल पे, ये फोर्स लगेगा साउथ पोल पे, राइट. दोनों फोर्स के कारण ये मैग्नेट रोटेट होगा. तो टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेट, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा. आप जानते हो कि कोई भी चीज रोटेट होती है तब टॉर्क लगता है. तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एम बी साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. और याद रखो बेटा, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, राइट. ये आपको याद रखना है while we are doing the formulas
तो ये while we are doing the numericals, तो ये सारे फॉर्मूला आपको याद रहने चाहिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड U equal to minus mb cos theta, where m is the magnetic moment, b is the magnetic field, and cos theta, theta is the angle between magnetic moment and magnetic field, right? Now work done। अगर मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट को रोटेट करना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है U2 माइनस U1। U2 मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, U1 मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, राइट? तो मैंने ऑलरेडी इसकी नोट्स आपको दे दी है। ये फॉर्मूला में कौन सा टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं वो आप याद रखना, और अगर आपको याद नहीं रहता है तो साइड में लिख भी लेना, ठीक है? चलो, नाउ period of the magnet placed in the magnetic field T equal to 2 pi under root of I by mb। यानी कोई भी मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तब वो रोटेट होता है। अब एक रोटेशन के लिए जो टाइम होता है उसको बोलते हैं पीरियड और पीरियोडिक टाइम, ठीक है? तो ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला क्या है? पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय mb। उसमें जो I होता है उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और b को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इसके बाद दोस्तों जो टॉपिक आता है उसको बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, देखो यहाँ पे जो ब्लू कलर से प्लेन बना है उसको बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन। जियोग्राफिक मेरिडियन में जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ पोल होते हैं, और ये जो रेड कलर का प्लेन बना है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। दो मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है उसको बोलते हैं थीटा। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, राइट? अब ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड बताता हूँ, ये ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे बताया है। ये मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल के साथ फाई जितना एंगल बनाता है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये जो है ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ फाई एंगल बनाता है। तो जिसके साथ एंगल बनाता है, जितना एंगल बनाता है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, सॉरी, जो एंगल बना है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लिफ्ट। एंगल ऑफ लिफ्ट किसको बोलते हैं? सपोज अर्थ पे ये जगह कोई एक प्लेस है, ये कोई प्लेस है, ये रही, यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है अर्थ का, और ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, तो मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लिफ्ट। तो उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ लिफ्ट। उसमें बी एच को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये रहा यहाँ पे बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकल कंपोनेंट, राइट? अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होता है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना होता है? तो दोस्तों वेक्टर में हमने पढ़ा है कि जिसके साथ एंगल होता है वो फाई, तो बी एच इक्वल टू बी कॉस फाई, और उससे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होता है वो बी वी इज इक्वल टू बी साइन फाई। यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो क्या होगा? देखो बेटा, ये होता है बी, ठीक है, ये होता है बी एच, और ये होता है बीवी, राइट? ये होता है बीवी। अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो सामने वाला भी बीवी होगा, ये है बी, तो मतलब पाइथागोरस थ्योरम यूज करें तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर एच, राइट? तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या होगा? अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर वी प्लस बी स्क्वायर एच। उसमें बीवी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, बीएच को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, फाई को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, और थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। यहाँ पे tan फाई, अगर आपको एंगल ऑफ डिप फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? tan फाई इज इक्वल टू ऑपोजिट tan फाई, ये है फाई, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट है बीवी और एडजेसेंट है बीएच, तो tan फाई का आंसर होता है बीवी बाय बीएच। तो ये पूरा टॉपिक था अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का। फिर उसके बाद हमने कोई एक मटेरियल, उसको मैग्नेट सोलेनॉइड के अंदर रखा था और उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्टडी की थी। तो अब उसके फॉर्मूला क्या होते हैं? उसमें बोलते हैं एच को हम बोलेंगे आई एफ,
IF is equal to N into capital IF, where H is called magnetic intensity, N को बोलते हैं number of turns per meter length, and IF को हम बोलेंगे current, H को हम बोलेंगे magnetic intensity. उसमें एक दूसरा फॉर्मूला ऐसा था, B by mu 0 minus M is equal to H. तो B by mu 0 minus M is equal to H. So B को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, म्यू 0 को बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, M को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, M को हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. ठीक है, उसके बाद एक और फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, M और H का रिलेशन, रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन अपॉन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उसको हम बोलते हैं काई एम. काई एम को बोलते हैं हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, काई एम को हम बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. अच्छा, अब मैग्नेटाइजेशन क्या होता है दोस्तों, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर सपोज, देखो मैं आपको यहाँ पे फिर से बताता हूं, अगर सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण उनके डायपोल मोमेंट होंगे. तो इसका डायपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में, इसका डायपोल मोमेंट सपोज ये डायरेक्शन में है, इसका डायपोल मोमेंट सपोज डाउनवर्ड है, इसका डायपोल मोमेंट सपोज ये डायरेक्शन में है. ठीक है, तो सारे रैंडमली अरेंज है. अगर उसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, फिर से दोस्तों उसको कहाँ रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम जब रखते हैं तब सारे डायपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. ठीक है, ऐसे सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं. वो फिनोमिना को दोस्तों हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन. क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजेशन. तो मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एम मैक्स इक्वल एन एम अपॉन वी. उसमें एन को बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स, स्मॉल एम को बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और वी को बोलते हैं हम वॉल्यूम. और मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला होता है एम बाई वी, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम. अगर यहाँ पे मैक्सिमम हम बोल दे तो मतलब कि जितने एटम्स होते हैं वो सारे एटम का, मतलब एक एटम का स्मॉल एम, तो एन एटम्स का कितना, एन एम बाई वी. ये फॉर्मूला है मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन का. ठीक है, अगर सोलेनॉइड के अंदर हम कुछ भी नहीं रखते, यानी टोरॉइड के अंदर कुछ भी नहीं रखते, मतलब टोरॉइड के अंदर पूरा खाली है, ये एक टोरॉइड है और टोरॉइड के अंदर पूरा खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं रखते, तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा बी 0 इक्वल टू म्यू 0 इंटू एच. और अगर टोरॉइड के अंदर हम कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का आंसर होगा म्यू इंटू एच. यानी देखो, in absence of toroidal core, in absence of any substance inside the toroidal core, magnetic field होगा B0 और परमिएबिलिटी होगी म्यू 0 वैक्यूम की. और अगर टोरॉइडल कोर के अंदर हम कुछ रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा B और परमिएबिलिटी होगी दोस्तों म्यू. अच्छा, म्यू इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम एंड म्यू 0 इज कॉल्ड परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम. दोनों का अगर हम रेशियो ले ले तो हमको मिलेगा म्यू आर. म्यू आर को हम बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी. ठीक है, म्यू को सब्जेक्ट बना दो तो म्यू का आंसर म्यू आर इंटू म्यू 0 होता है. तो बी का आंसर यहाँ पे एच म्यू की वैल्यू रख दो बेटा, म्यू क्या है यहाँ पे, म्यू आर इंटू म्यू 0, तो बी का आंसर म्यू आर म्यू 0 इंटू एच. तो ये जो सारे फॉर्मूलाज है वो मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस के फॉर्मूलाज है. ठीक है, फिर अगर हमारे पास ये मैग्नेट है तो मैग्नेट का डायपोल मोमेंट होता है स्मॉल एम इक्वल टू 2l इंटू पी. उसमें जो 12 जो होता है मैंने आपको बोला उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ और पी को हम बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ. राइट, और एंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ पोल of pole strength P in magnetic field B is given by F equal to PB. So F equal to PB is the force acting on pole placed in magnetic field B. जैसे होता था F equal to QE होता था ना, तो Q को बोलते हैं हम चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो मैग्नेटिक फोर्स में चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं. और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड. तो ये जो सारे फॉर्मूलाज है ये आपको याद रखना है. ठीक है,
और ये फॉर्मूलाज के ऊपर जितने भी सम्स है वो हम देखते हैं। पहले इलस्ट्रेशन कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद एक्सरसाइज। ठीक है, ये देखो दोस्तों 4 मार्क का चैप्टर है, मतलब कि आप ये एक चीज कंफर्म है कि इसमें 2 एमसीक्यू आएंगे। तो 2 एमसीक्यू आएंगे तो बचे 2 मार्क। ठीक है, तो अगर 2 मार्क बचे तो या तो 2 मार्क का कोई एक क्वेश्चन आता है या तो 2 मार्क का कोई सम आएगा। अब आप सोचो 2 मार्क का सम होगा तो वो कैसा होगा, तो उसकी औकात 2 मार्क जितनी होगी, यानी छोटा ही सम होगा, बहुत बहुत बड़ा यानी ज्यादा सम नहीं होगा जिसमें 3-4 चीजें फाइंड करनी होगी, ऐसा कोई सम होगा नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखना, यानी ये चैप्टर की प्रिपरेशन को लास्ट में करने के, क्योंकि जैसे होता है ना, जैसे इंग्लिश में होता है कि इंग्लिश के मार्क्स जो होते हैं तो वो हम ज्यादातर का काउंट नहीं करते, तो हम लोग क्या करते हैं कि एग्जाम के अगले दिन या 2 दिन पहले इंग्लिश करते, तो वैसे ही यहाँ पे ये चैप्टर का भी ऐसा है कि इसके 4 मार्क है, तो इसको सबसे लास्ट में इसको प्रिपेयर करने का, जब भी आप फिजिक्स की प्रिपरेशन करो तब। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5.1। The magnetic needle has a magnetic moment 6.7 into 10 raised to minus 2 ampere meter square. M आपको दिया है, and moment of inertia 7.5 into 10 raised to minus 6 kg into meter square. Moment of inertia आपको दिया है। Number of oscillations आपको दिया है 10, और उसके लिए जो टोटल टाइम है वो 6.70 सेकेंड। What is the magnitude of magnetic field? तो दोस्तों क्या है, I है, M है और B फाइंड करना है आपको। तो फॉर्मूला क्या होगा, T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I बाय MB, ये फॉर्मूला, राइट। अब आपको ये सारी वैल्यू दी है या नहीं दी है देखते हैं। देखो पीरियोडिक टाइम आपको नहीं दिया है, आपको टोटल टाइम दिया है, पीरियोडिक टाइम नहीं दिया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दी है, मैग्नेटिक मोमेंट आपको दिया है। आपको फाइंड करना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम टी फाइंड कर दें तो ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। टी हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक ऑसिलेशन का टाइम होता है कैपिटल टी, तो एन ऑसिलेशन का टोटल टाइम कितना होगा, तो टोटल टाइम का आंसर होगा एन इंटू टी, राइट। तो टोटल टाइम एन इंटू टी, तो अगर कैपिटल टी फाइंड करना है तो टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ ऑसिलेशन करो। बेटा टोटल टाइम आपको दिया है 6.70 और नंबर ऑफ ऑसिलेशन है 10, तो ये 0.67 सेकेंड, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला। यहाँ पे ये फॉर्मूला में आपको बी फाइंड करना है, बी को आप सब्जेक्ट बना दो। कैसे बनाओगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो टी स्क्वायर का आंसर 4 पाई स्क्वायर आई बाई एम बी। तो बी का आंसर क्या होगा, 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। बी को आप सब्जेक्ट बना दो तो टी स्क्वायर यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम टी स्क्वायर। नाउ प्लेसिंग वैल्यू ऑफ 4, पाई इक्वल टू 3.14, आई इक्वल टू 7.5 into 10 raised to minus 6। ओके, मास m, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट m, वो अब मैं यहाँ पे प्लेस करना भूल गया था दोस्तों, तो आप लिख लेना 6.7 into 10 raised to minus 2। ठीक है, यानी पीडीएफ में नहीं होगा इसलिए मैं आपको बताता हूँ। और कैपिटल टी का आंसर 0.67 उसका होल स्क्वायर। तो ये सारी वैल्यू अगर आप रखोगे तो फाइनली आपको मैग्नेटिक फील्ड भी आपको मिल जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट सम, इलस्ट्रेशन 5.2। ठीक है, तो मतलब कि ऐसा हो सकता है बेटा कि अगर एक ही एमसीक्यू आपको पूछे और 3 मार्क का एक सम आपको पूछ ले। ठीक है, तो 3 मार्क का सम, तो ये 3 मार्क्स का सम है। ठीक है, मैं आपको मार्क्स भी बोल दूंगा तो आपको पता चलेगा। Illustration number 5.2. A short bar magnet placed with its axis 30 degree with external field of 800 Gauss and experience a torque of 0.016 न्यूटन मीटर। तो बेटा आपको थीटा कितना दिया है बेटा, 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 800 गॉस। ठीक है, यानी गॉस देखो 1 गॉस इक्वल टू होता है बेटा 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो 800 गॉस मतलब 800 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नेटिक, अच्छा आपको टॉर्क भी दिया है, टॉर्क आपको दिया है 0.016 न्यूटन मीटर।
ए आपको फाइंड करना है व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, आगे मैंने फॉर्मूला आपको बताया, टॉर्क का आंसर एम बी साइन थीटा, राइट। तो अगर एम को आप सब्जेक्ट बना दो तो एम इक्वल टू टाउ अपॉन बी साइन थीटा। सो एम इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू 0.016, b equal to 800 into 10 raised to minus 4, sin theta equal to sin 30 degree. So by placing this value, we get magnetic moment m equal to 0.40 ampere into meter square. ये आपका मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं वर्क। तो देखो सेकंड आपको पूछा है कि व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम इट्स मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन। बेटा मोस्ट स्टेबल टू मोस्ट अनस्टेबल पोजीशन मतलब क्या, तो मैं आपको समझाता हूँ, एक मिनट आगे। यहाँ पे अगर ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, एंड हियर वी हैव अ नॉर्थ पोल, हियर वी हैव अ साउथ पोल, एंड हियर वी आर प्लेसिंग अ मैग्नेट, राइट। ये मैग्नेट है, ठीक है। अगर ये साउथ है ये नॉर्थ है तो साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन होगा और नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन होगा। तो ये जो कंडीशन है ये स्टेबल कंडीशन है, मतलब कि दो फोर्स इक्वल इन मैग्नेट ऑपोजिट इन डायरेक्शन लग रहे हैं। यहाँ पे देखो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन, भाई साउथ नॉर्थ, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ टू नॉर्थ। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, मतलब थीटा होगा 0। तो स्टेबल पोजीशन के लिए एंगल जो होता है वो होता है 0, एम और बी के बीच का। अब अनस्टेबल पोजीशन किसको बोलते हैं, तो अनस्टेबल पोजीशन मतलब कि देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और मैग्नेट को मैंने ऐसे रखा है, यहाँ पे नॉर्थ यहाँ पे साउथ। तो साउथ साउथ रिपल्शन होगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होगा। बट यहाँ पे ये मैग्नेट पूरा घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी ये पोजीशन में फोर्स तो बैलेंस कर रहे हैं बट ऑब्जेक्ट ये पोजीशन में रहेगा नहीं। तो ये पोजीशन पूरा यानी ऐसे क्लॉकवाइज पूरा मैग्नेट ऐसे घूम के ऐसे हो जाएगा, ठीक है। यानी देखो नॉर्थ यहाँ पे, तो अभी साउथ यहाँ पे आ जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इसको अनस्टेबल पोजीशन, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी थीटा होता है 180 डिग्री। तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल पोजीशन। तो आप इतना याद रखो बेटा, स्टेबल पोजीशन में थीटा 0 होता है और अनस्टेबल पोजीशन में थीटा होता है 180। आपको वर्क फाइंड करना है तो मैंने आगे फॉर्मूला आपको सिखाया कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, U2 माइनस U1। U2 मतलब माइनस एम बी कॉस 180, क्योंकि थीटा ये थीटा 1 है, ये थीटा 2, तो पहले होगा थीटा 2 माइनस माइनस एम बी कॉस 0, बिकॉज यू का आंसर माइनस एम बी कॉस थीटा। यू का आंसर बेटा क्या होता है, माइनस एम बी कॉस थीटा। तो यानी माइनस एम बी कॉस थीटा 2 माइनस माइनस एम बी कॉस थीटा 1, तो थीटा 2 इक्वल टू 180 एंड थीटा 1 इज इक्वल टू 0। कॉस 180 का आंसर होता है -1, तो -1 इंटू माइनस एम बी यानी प्लस एम बी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस 0 का आंसर होता है 1, तो यानी एम बी, तो एम बी प्लस एम बी फाइनली क्या होगा 2 एम बी। ये हो गया वर्क डन। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट 0.40 एंड मैग्नेटिक फील्ड 800 इंटू 10⁻⁻⁴। तो फाइनली यहाँ पे जो वर्क होगा वो कितना होगा, ट्वाइस इंटू एम बी जितना, यानी 0.04 जितना। आपको एम दिया है और बी दिया है, बी भी दिया है, आपको मैग्नेटिक मोमेंट भी दिया है, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपने फाइंड किया यहाँ पे 0.40 और बी का आंसर 800 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये आंसर है आपका वर्क डन का। तीसरा आपको क्या पूछा है, द बार मैग्नेट इज रिप्लेस्ड बाय सोलेनॉइड ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 इंटू 10⁻⁴, यानी एरिया आपको दिया है, एरिया कितना दिया है बेटा
2 into 10 raised to minus 4 meter square and number of turns आपको दिए 100, राइट, बट द सेम मैग्नेटिक मोमेंट, यानी ये सोलेनोइड का मैग्नेटिक मोमेंट जो बार मैग्नेट का आता था उतना ही, यानी इतना ही होगा 0.40। तो आपको करंट फाइंड करना है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस इक्वल टू, सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, एम एस इक्वल टू एन आई ए। सो आई इक्वल टू एम एस अपॉन एन ए। एम एस कितना है 0.40, नंबर ऑफ टर्न है 100 और एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻⁴। सो ये जो करंट होगा वो दोस्तों होगा 2 एम्पियर। ठीक है, तो यानी यहाँ पे तीन चीजें फाइंड करनी है, मतलब कि ये जो सम होगा वो 3 मार्क्स का होगा। यानी थोड़ा लॉजिक यूज करने का कि जो सम है तो उसकी लेंथ देखने की और फिर आपको डिसाइड करने का कि वो कितने मार्क्स में आ सकता है। ठीक है, चलो इसके बाद ये 2 मार्क्स का सम हो सकता है। इलस्ट्रेशन 5.4। What is the magnitude of equatorial and axial field due to a bar magnet of length 5 centimeter at a distance 50 centimeter from its midpoint? The magnetic moment of the bar magnet is 0.40 ampere into meter square. तो आपको मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस फाइंड करना है। 2L मतलब मैग्नेटिक लेंथ। आपको जो डिस्टेंस दिया है ये आपके लिए बहुत आईएमपी डिस्टेंस। आप देखो मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्मूला में, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला में आपको डिस्टेंस जरूरी है। तो डिस्टेंस आपको दिया है 50 सेंटीमीटर, राइट, एंड मैग्नेटिक मोमेंट m इक्वल टू 0.40 एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इक्वेटर की बात करें तो आगे जैसे फॉर्मूला देखा वैसे इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0.4πm/r³। तो μ0 इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, मैग्नेटिक मोमेंट 0.40, 4 पाई एंड r³ इक्वल टू 0.5। क्यों 0.5? क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो मैंने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.5 मीटर डिवाइडेड बाय 100 किया। तो यानी इसका जो आंसर आता है वो 3.2 इंटू 10⁻⁷। आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते हो कि बी एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर। तो एक्सियल का आप फाइंड करो तो एक्सियल का इक्वेटर का आपने फाइंड किया 3.2 इंटू 10⁻⁷। तो 3.2 इंटू 2 यानी 6.4 इंटू 10⁻⁷। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो या तो डायरेक्ट एक्सिस का फॉर्मूला भी आपको पता है। तो बी का आंसर μ0.4/2m/r³, क्योंकि ये इससे डबल होगा। तो ट्वाइस ऑफ बी इक्वेटर, बी इक्वेटर की वैल्यू आप डाल दो, फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा, राइट। अब यहाँ पे m की वैल्यू r की वैल्यू डाल के भी आप फाइंड कर सकते हो, बट वो थोड़ा बेटा बड़ा हो जाएगा। तो शॉर्ट एंड स्वीट न्यूमेरिकल हमको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट बेटा इलस्ट्रेशन 5.8। The Earth's magnetic field at the equator is approximately 0.4 Gauss. Estimate the Earth's dipole moment. तो अर्थ के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0.4 गॉस है। सबसे पहला काम ये करने का गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट करने का। तो 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ टेस्ला ये इक्वेटर पे हुआ। आर को हम बोलेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अच्छा आर मतलब डिस्टेंस, यानी ये जो अर्थ होता है ना, तो अर्थ के लिए जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, इज इक्वल टू हम लेंगे रेडियस ऑफ द अर्थ। तो जो रेडियस ऑफ द अर्थ है वो आपको पता है कि 6400 किलोमीटर। उसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करो तो आप ऐसा लिख सकते हो 6400 इंटू 10⁻³ मीटर। मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हो कि 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। तो ये रेडियस आर और आपको एम फाइंड करना है। बेटा इक्वेटर पे फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वेटर इक्वल μ0/4πm/r³। आपको मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करना है तो एम को सब्जेक्ट बना दो, तो 4 पाई r³ इंटू बी इक्वेटर अपॉन μ0। तो 4 पाई बेटा बी इक्वेटर आपको दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁴ गॉस। आर आपको दिया है 6.4 इंटू 10⁻⁶ उसका होल क्यूब, और नीचे μ0 का आंसर वो कांस्टेंट 4.2 10⁻⁻⁷। फाइनली जब आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻23
एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये होगा इलस्ट्रेशन 5.8। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5.9। अब यहाँ पे आपको क्या बोला है, इन द मैग्नेटिक मेरिडियन of certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 cos. ठीक है। An angle of DP is 60 degree. What is the magnetic field of the Earth at this location? यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। देखो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया है BH, आपको एंगल ऑफ डिप यानी फाई दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो BH का आंसर दोस्तों क्या है, B cos फाई। तो बी आपको फाइंड करना है, तो बी एच अपन कॉस फाइव, बेटा बी एच 0.26। देखो ये अगर हम गॉस में रखेंगे ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी गॉस में ही आएगा, और टेक्स्ट बुक में उन्होंने गॉस में ही रखा है। आपको कन्वर्ट करना है तो कर सकते हो इंटू 10⁻⁴, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ही फाइंड करना है, तो वो गॉस में दिया है, तो अब ना करो तो भी चलेगा। तो बी एच इक्वल 0.26 गॉस और कॉस फाइव मतलब कॉस 60, बेटा कॉस 60 का आंसर होता है 1/2। तो 0.26 डिवाइडेड बाय 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली 0.52 गॉस। ठीक है, तो ये जो सम है ना, ये फाइनली ये एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, ये 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में नहीं आ सकता। ये ऐसे जो सम होते हैं ना, जो सिर्फ एक ही स्टेप का है ना दोस्तों, क्योंकि एक फॉर्मूला यूज किया, आपको भी फाइंड करना है, बाय प्लेसिंग द वैल्यू यू गेट द वैल्यू। तो ये 1 मार्क में आ सकता है। इसके बाद illustration number 5.10. A solenoid has a core of material with a relative permeability 400, यानी म्यूआर आपको दिया है 400. The windings of the solenoid are insulated from the core and carry a current of 2 ampere. ठीक है, The windings of the solenoid are insulated from the core, यानी कोर से वो अलग है। ठीक है, और कितना करंट पास हो रहा है, 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 100 पर मीटर, यानी स्मॉल एन आपको दिया है, करंट आपको दिया है 2 एम्पियर। कैलकुलेट एच एम बी एन मैग्नेटिक करंट। आपको ये 4 चीजें फाइंड करनी है। तो एक्चुअली ये जो सम है ये 4 मार्क का सम है, यानी टेक्स्ट बुक में ये पूरा सम तो नहीं आ सकता है, बट आधा आधा आ सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी 2 चीज आपको पूछे तो वो आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। ठीक है, तो पहले फाइंड करते कैलकुलेट एच। एच इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैंने बोला था दोस्तों फॉर्मूला में एच इक्वल टू होता है आई एफ, और आई एफ का आंसर एन इंटू आई एफ। उसमें एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर लेंथ यानी 1000, और आई एफ दिया है दोस्तों 2 एम्पियर। तो फाइनली एच का आंसर आएगा 2000 एम्पियर पर मीटर। ये एच का आंसर हुआ। ठीक है, इसके बाद हम पहले फाइंड करते हैं सी मैग्नेटिक फील्ड, तब जाके आपको एम मिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते, तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने आगे देखा था, बी का आंसर म्यू आर म्यू 0 इंटू एच। बेटा म्यू आर आपको दिया है 400, म्यू 0 4.2 × 10⁻⁷, और जो एच है जो हमने फाइंड करा वो कितना है 2000। तो अगर हम वैल्यू प्लेस कर दे तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों 1 टेस्ला। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा 1 टेस्ला। अब हम बात करते हैं कैपिटल एम की। दोस्तों ये फॉर्मूला है बी बाई म्यू 0 माइनस एम इक्वल टू एच। तो बी बाई म्यू 0 माइनस एच इक्वल टू एम। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो कि भाई आप बी की वैल्यू रख दो, म्यू 0 की वैल्यू रख दो, फिर एच की वैल्यू रख दो, आपको एम मिल जाएगा। ठीक है, अब टेक्स्ट बुक में देखो कैसे फाइंड किया है, उन्होंने म्यू 0 को सब्जेक्ट बनाया है। तो बी माइनस म्यू 0 एच अपॉन म्यू 0 एलसीएम इक्वल टू म्यू 0 का उन्होंने एलसीएम लिया है। ठीक है, तो बी का आंसर हम जानते हैं ना, बी क्या होता है म्यू आर म्यू 0 एच। तो बी की जगह पे म्यू आर म्यू 0 एच, राइट, माइनस म्यू 0 एच ऑलरेडी है,
ये रहा अपॉन म्यू जीरो इक्वल टू एम। यहाँ ऊपर क्या कॉमन निकलेगा, म्यू जीरो एच, तो ये कॉमन निकला अपॉन म्यू जीरो। तो क्या बचेगा, एक म्यू आर बचेगा और यहाँ पे कुछ नहीं यानी 1, म्यू आर माइनस 1 इक्वल टू एम। तो यहाँ पे म्यू जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो h इंटू म्यू आर माइनस 1 इक्वल टू एम। h आपको दिया है 2000, म्यू आर आपको दिया है 400, ये रहा ना 400, h आपने फाइंड किया 2000 माइनस 1 यानी ये 399 इंटू 200, तो फाइनली अप्रोक्सीमेटली 8 इंटू 10, यानी इसको हम अप्रोक्सीमेटली 400 ले ले सपोज, तो आंसर आपको मिलेगा 8 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। तो अभी मैं लेक्चर कट कर रहा हूँ, ठीक है, बंद कर रहा हूँ, उसके बाद आप रिज्वाइन होना, क्योंकि ये सम अभी आधा है, ठीक है, तो बाकी रिज्वाइन होना, अभी लेक्चर में कट कर रहा हूँ।